How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today I give you the video of note making, which is your section B, third question, which comes in note making. Now, note making is an important study skill. It also helps us at work. We need to draw the main points of the material we read as it is difficult to remember large chunks of information. Now let us begin with an example. नोट मेकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल होता है जो हमें काम करते समय हेल्प करता है। तो हमें क्या चाहिए कि जो मटेरियल हमारे पास है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसको पूरा तो वो याद करना, जो इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए, उससे हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं कि जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उनको हम अपने पास इकट्ठे कर लेते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल स्टूडेंट, वो हम पहले इसको देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। Peasants are shy, charming birds known for their brilliant plumage. These beautiful birds occupy an important niche in nature's scheme of things. Of the 900 bird species and 155 families, the peasants belong to the order Galliformes and family Phasinidae. The Galliforms are known as game birds, and this includes peasants, partridges, quails, grouse, francolins, turkeys, and megapods. Now, there are 51 species of peasants in the world, and these are shown in the identification chart brought out by the Environment Society of India, which is also called as ESI. The purpose of this chart is to create awareness among members of the school eco clubs under the National Green Crops, which is also called as NGC, of the Ministry of Environment and Forest, Government of India. Except for the Kango peafowl, all the other peasants are from Asia. Scientists believe that all peasants originated from the Himalayas and then scattered into Tibet, China, Myanmar, South and Southeast Asian countries, as well as the Caucasus Mountain. The jungle fowl and the peafowl spread to South India and Sri Lanka long before the early settlers established themselves in the Indo-Gangetic plain. About a third of the all peasants in the world are found in India. The male blue peafowl, means the peacock, is the best known member of the peasant family and is India's national bird. It occupies a prominent place in India's art, culture and folklore. Now when we start note making, the step 1 is notice that the important information has been underlined. कि स्टेप 1 होता है कि जो पैसेज हमने पढ़ा है उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम सबसे पहले अंडरलाइन कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेकेंड स्टेप होता है रीड द पैसेज अगेन, आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चन एंड आंसरिंग देम एज यू रीड। कि पैसेज को आपको दोबारा रीड करना है और अपने आप से क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसके आंसर में। लाइक व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है, पीजेंट्स के बारे में। वेयर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं, एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया, द 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ओरिजिन कहाँ है, हिमालयाज में। टाइम क्या है, लॉन्ग बिफोर इंडो गैंगटिक प्लेन सेटलमेंट्स। देन विच ग्रुप ऑफ बर्ड्स, कौन कौन सी ग्रुप के बर्ड्स हैं, तो इनका ऑर्डर लिखा हुआ है गैलीफॉर्म्स, गेम बर्ड्स। फैमिली है Phasinidae. Then how many species? 51. What is the source of information? ESI chart. What is the purpose of the ESI chart? Create awareness among school eco clubs under NGC. And which is the best known member? Peacock, India's national bird. तो स्टेप 2 में हम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से आस्क करके और आंसर लिखेंगे। देन स्टेप 3 जो होता है उसमें होता है कि विद द हेल्प ऑफ द आंसर्स नोट डाउन द मेन पॉइंट्स, राइट द पॉइंट्स विदाउट फुल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आंसर्स अभी हमने फाइंड किए हैं उनको हमको मेन पॉइंट्स के रूप में लिख लेना है और इन पॉइंट्स के फुल फॉर्म लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लाइक peasants, shy bird with bright plumage found largely in Asia, especially India. Then origin in the Himalaya and spread in China, Myanmar, South and Southeast Asia. Then order Galliforms, game birds, family Phasinidae. Number of species 51 ESI chart के according.
पर्पस ऑफ ESI चार्ट क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्कूल इको क्लब्स अंडर NGC. देन पीकॉक, इंडियाज नेशनल बर्ड, मेंबर ऑफ फैमिली. इसके बाद आप नोटिस क्या करोगे? 2 और 3 रिलेटेड आइडियाज़ कैन बी कंबाइंड इनटू 1 पॉइंट. जब 2 और 3 आइडियाज़ एक साथ रिलेट करते हैं तो उनको हमको एक पॉइंट में लिखना है. देन यूज़ ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स का यूज़ करना है. यूज़ ऑफ द लॉन्ग डैश, लॉन्ग डैश को यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग डैश यूज़ करने हैं और कॉलम्स यूज़ करने हैं. स्टेप 4 में क्या करना है आपको? नाउ गो ओवर द फैक्ट एंड नंबर देम. अब फैक्ट्स को देखकर हमें उनको नंबर देना है. नाउ दिस इज़ ओनली टू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग. With practice, you will be able to reach step 4 immediately, going through step 2 and 3 mentally. 2 और 3 को mentally करके आप 4 स्टेप को तुरंत करें. स्टेप 5 होता है कि फाइनली वी गो ओवर द फैक्ट एंड नंबर देम अगेन, कि दोबारा से हम फैक्ट में जाएंगे और उन्हें नंबर करेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको गुड नोट के लिए जैसा नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है आपको वैसा उसको फॉलो करना है. कि फर्स्ट पॉइंट दिया हमने, फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, नोट शुड बी शॉर्ट, दे शुड आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट, दे लिस्ट इन्फॉर्मेशन इन व्हाट इज़ कॉल्ड नोट फॉर्म एंड दे आर रिटन ओनली इन फ्रेजेस नॉट सेंटेंस. फ्रेजेस में लिखना है, सेंटेंस में नहीं लिखना है. सेकेंड में इन्फॉर्मेशन इज लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बाय द यूज़ ऑफ फिगर और लेटर्स. देन डिविजन्स आर मेड लाइक दिस. मेन सेक्शन को आप 1, 2, 3 पॉइंट में देंगे. सब सेक्शंस जो मेन सेक्शन के अंदर सेक्शन आएंगे उनको रोमन नंबर में 1, 2, 3 देंगे. और जो सब सेक्शंस के सब सेक्शंस में आएंगे उन्हें आप ABC के नाम से देंगे नंबर. फिर अनदर कॉमन मेथड होता है डेसिमल सिस्टम, कि मेन सेक्शन को आपने 1, 2, 3 दिया, सब सेक्शन को आपने 1.1, 1.2, 1.3 दिया एंड सब सेक्शंस को 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 like that. Then abbreviations and symbols are freely used. Articles, prepositions and conjunctions are omitted. Abbreviations और symbols जो हैं आप उसको freely use कर सकते हैं, लेकिन articles, preposition और conjunctions omit हो जाते हैं. Then note must make sense when they are read again, otherwise they will be no use. Notes में sense होना चाहिए जब उसे आप दोबारा read करेंगे, otherwise उसका कोई भी use नहीं होगा कि आपने क्या notes बनाए हैं अगर उससे कोई भी sense नहीं निकलता है. So students, this is the procedure of note making. So you have to read this total number what I have given to you, all the steps, and then you make the notes of your chapter.